سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے اسپیکر اسد کیسر کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسپیکر نے بچتے بچاتے 50 لوگوں کے نام دیے۔ وزیر اعظم نے وزراء کے ناموں کی چھانٹی کر دی اور تمام وزراء کا موقف درست قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا ملاقات میں کیا امور زیر بحث آئے اور فیصلے کس طرح سے ہوئے؟ جی بالکل، وزیر اعظم سے اسپیکر اسد کیسر کی ملاقات ہوئی تھی، جس کی جو گزشتہ روز ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اس کی تفصیل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعظم کو دی، جس کے بعد وزیر اعظم نے جو رپورٹ انہوں نے دی تھی اس میں 50 سے زائد افراد کے نام شامل تھے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو سفارش کی تھی جس میں وزراء کے نام بھی تھے، جس پر وزیر اعظم نے حکومتی وزراء کا موقف سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ماحول کا خراب کرنے میں جو کردار تھا مرکزی وہ اپوزیشن کا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء اور اراکین کو مستقل کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے موقف اپنایا کہ ایوان کو پرامن انداز میں چلانا جو ہے وہ اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اور ماحول کو پرامن رکھے۔ جبکہ اسپیکر نے حکومتی وزراء کی کارکردگی سے متعلق جب وزیر اعظم کو آگاہ کیا تو وزیر اعظم نے وزراء کو بے قصور قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعظم کے موقف کے بعد جب اسد کیسر نے صرف 7 اراکین کی معطلی کا آرڈر جاری کیا، جس کے بعد اسپیکر نے وزیر اعظم کے موقف کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، جبکہ CCTV جو فوٹیج تھی اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وفاقی وزراء جو ہے وہ بھی گالم گلوچ میں مصروف تھے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اسمبلی میں نازیبا زبان کا استعمال اور گالم گلوچ پر ایکشن ہو گیا۔ اسپیکر اسد کیسر نے 7 ممبران پر اسمبلی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 4 ارکان ایوان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ہلڑ بازی کرنے والے تمام وزراء کو کلین چٹ مل گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مراد سعید کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگائی، نہ ہی شیریں مزاری کے شفقت محمود، زرتاج گل اور علی امین گنڈاپور کا شور شرابہ بھی نظر نہ آیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 7 اراکین کے ایوان میں داخلے پر تو پابندی لگا دی، لیکن اسمبلی میں ہلڑ بازی کرنے والے تمام ورکرز کو کلین چٹ دے دی۔ یہ ہیں وزیر مواصلات مراد سعید، جنہوں نے اسمبلی اجلاس بڑھ چڑھ کر سیاسی مخالفین کو کتابیں ماری، لیکن موصوف اسد کیسر کی نظر میں معصوم نکلی۔ ان کی وزارت پر براجمان شفقت محمود نے بھی قوم کے نوجوانوں کو ہنگامہ آرائی کرنے کا خوب درس دیا، اسی لیے تو اسپیکر نے بھی ان پر کھل کر شفقت کی۔ ہو سکتا ہے اسد کیسر کی نظر میں شیریں مزاری نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہو، ایسے میں ایکشن لینا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، ماحولیات کی وزیر زرتاج گل ایوان میں احتجاج کا ماحول بناتی رہی۔ علی امین گنڈاپور اسمبلی میں آستینے چڑھا کر پھرتے رہے، مگر اسد کیسر ماحول میں ایسے رنگے کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اپوزیشن نے حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی کو بھی مسترد کر دیا۔ مزید جانتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کوئی معاملات طے نہ ہو سکے؟ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ جو بھی مذاکرات اب ہوں گے وہ پارلیمان کے اندر ہوں گے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومتی جو اراکین اور وزراء نے پارلیمان کے اندر 2 دنوں سے اپوزیشن جماعتوں کی تذلیل کی ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی بات ہوگی وہ پارلیمان کے اندر ہوگی۔ حکومت کوئی کمیٹی تشکیل نہ دے، ہمارے حکومت سے کوئی اختلافات نہیں ہے۔ جو بھی بات ہوگی، پہلے بھی بات پارلیمان میں ہوئی، انہوں نے اپوزیشن کی بے عزتی جو ہے وہ پارلیمان میں کی تھی، تو ہم بھی اس کا جواب اب پارلیمان میں ہی دیں گے، لہٰذا اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی جانب سے بننے والی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ جی ٹھیک عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال دیا اور ایوان کے باہر بھی ایک دوسرے پر کھل کر تنقید کی۔ کس نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ پارلیمانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ نہ گورنمنٹ اسپیکر میں اعتماد کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ اسپیکر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کس نے حملہ کیا اور کس نے گالیاں نکالی ہیں۔ اسپیکر کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، 7 لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیڈر تو اپوزیشن پہ حکومت کے MNAs نے، وزیروں نے حملہ کیا ہے، اسپیکر اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ اسپیکر صاحب وہ ہاؤس چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں، اب اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو کہ ایک فیل اور ناکام اسپیکر ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس اسپیکر کی کوئی بات ماننی چاہیے، لیکن چیئر کی عزت ہم کرتے ہیں۔ جو کچھ کل اسمبلی میں ہوا اور وہ ٹوٹلی جو ڈرامہ تھا وہ عمران نیازی کے ماں پر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے
जो है इन दोनों हजरात ने मिलकर उसको प्लान किया था। स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो PMLN की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो एक एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक ही नहीं है। कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए एक सयाह दिन था। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबरान पार्लियामेंट ने किया वो कोई नई बात नहीं है। बुलाकर स्पीकर ने इजलास, फिर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से गालियां दी गई अपोजिशन को। ना ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, ये निजाम पर हमला करना चाहते हैं, ये स्पीकर की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं, किसको मारी गई थी? पार्लियामेंट पे हमला करना चाहते हैं। पहले बोतल आई, फिर बोतल आई, उसके और हमारे जाते ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की और वहां से गालियां शुरू हुई। तो ऐवान की लड़ाई ऐवान के बाहर भी जारी रही। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने इल्जाम किया है कि उनकी गाड़ी को नून लीगी MNA इकबाल बोसाल की गाड़ी ने टक्कर मार दी। आलिया हमजा ने इल्जाम किया कि नून लीगी MNA इकबाल बोसाल ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। नून लीगी अपना गुस्सा हमारी गाड़ियों पर निकाल रहे हैं। ऐवान की लड़ाई ऐवान के बाहर भी जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने इल्जाम किया है कि उनकी गाड़ी को नून लीगी MNA इकबाल बोसाल ने टक्कर मारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का नस्ला टावर गैर कानूनी करार देकर फौरी गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुज्जर नाला ऑपरेशन रोकने की अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक हफ्ते में मुतासरीन के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग मॉल और पेविलियन एंड क्लब को मिसमार करने के लिए कार्रवाई जारी रखी गई। शॉपिंग मॉल में कायम 650 दुकानों को मिसमार किया जाए। राशिद मिनास रोड पर कायम अलादीन पार्क की जमीन पर शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब में इंसदाद तजावुजात सेल का एक्शन दूसरे रोज भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी के जरिए शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब में मौजूदा तजावुजात को मिसमार किया गया। शॉपिंग मॉल में कायम 650 दुकानों को मस्मार किया जाएगा, जबकि पवेलियन एंड क्लब का मरकजी गेट, सिक्योरिटी चौकी और दीवारें मस्मार की जा चुकी हैं। कोई हमारे को टाइम नोटिस नहीं दिया गया कि हम दुकान को खाली करने के लिए टाइम मिल जाए कहीं रखने का। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे, हम गरीबों के ऊपर रहम करें। हम लोग मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं जो रोज यहाँ से कमा के लेके जाते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची को जिला इंतजामिया, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत हासिल है, जबकि महकमा इंसदाद तजावुजात, जिला शर्की के अफसरान और एहलकार भी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची को 6 रोज में हतमी रिपोर्ट जमा कराने के अहकामात दिए गए हैं। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने बड़ा फैसला सुना दिया। रवा साल इम्तहानात में कोई तालिब इल्म फेल नहीं होगा। पासिंग मार्क्स देकर सबको पास कर दिया जाएगा। सुबह सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। सिंध के तलबा के लिए खुशखबरी आ गई, फेल होने वाले भी फेल नहीं होंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने बड़ा फैसला सुना दिया। कहा गया कि रवा साल फेल तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास किया जाएगा। तमाम तलबा को इजाफी 3 से 5% मार्क्स भी दिए जाएंगे। 9वीं और फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात जुलाई और अगस्त में मुनक्किद किए जाएंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि इम्तिहानात इख्तियारी मज़ामीन के ही होंगे। जो भी बच्चा इन मज़ामीन में फेल होगा उसको पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। क्लास 1 से 8वीं तक के इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। ये इम्तिहानात स्कूल्स अपने तौर पर लेंगे। रवा साल सुबह सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। ताहम अगर दर्जा हरारत ज्यादा हुआ तो सूरत हाल देख कर कोई फैसला किया जाएगा। इजलास की सदारत वज़ीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी ने की। बजट नया, कीमतें वही पुरानी। आटा, दाल और चीनी के साथ साथ कराची में कई माह बाद भी दूध की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर काद के बासी आज भी दूध 130 रुपए फी लीटर खरीदने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में दूध की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है? दूध की कीमतें बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? 24 न्यूज ने सब पता लगा लिया। कभी चारा महंगा होने का बहाना तो कभी पेट्रोल महंगा होने का हरबा। डेयरी फार्मर्स और इंतजामिया दूध की असल कीमतों का तयन करने में नाकाम रही। क्या कह सकते हैं, ये तो अब इन इदारों को चाहिए ना कि इनका अमल दरामद कराएं, इनका जो गरीबों का कोई ख्याल करे, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है इस हुकूमत में। लूटने वाले लूट रहे हैं, जो लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं, और क्या कहना है। मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, जब तक इंतजामिया खामोशी नहीं तोड़ेगी अवाम का पैसा जेब से निकलता रहेगा। कमिश्नर से मुलाकातों का कोई फायदा नहीं होता। इंतजामिया अपना काम बर वक्त अदा नहीं करती, जिसकी वजह से ये मसाइल जन्म देते हैं। अगर वो बर वक्त अपना काम दियानतदारी के साथ अंजाम दें तो कोई प्रॉब्लम ना आवाम को है ना
और किसी स्टेक होल्डर को है। दूसरी जानिब 3 माह गुजर जाने के बाद बिल आखिर कमिश्नर कराची को भी दूध की कीमतें कंट्रोल करने का ख्याल आ ही गया। 22 जून को तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया। कैमरामैन अमर रहमान और साजिद के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तैयारी कर लें, बादल कल आ रहे हैं। कल शाम थंडर सेल्स बन सकते हैं। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी और हल्की बारिश होगी। बादल 19 जून तक बरसेंगे। कराची में मौसम के तेवर बदलने लगे। सारा दिन सूरज की आंख मचोली जारी रही, ताहम अब 3 दिन के लिए बारिशों की खबर आ गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून बारिशों का स्पेल 19 जून तक चलेगा, जिससे हब्स और गर्मी का जोर टूट जाएगा। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान थंडर सेल्स बन सकते हैं, जबकि 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज, चमक और तेज गर्द आलूद हवाओं का भी इम्कान है। इस्लामाबाद में सदियों पुरानी पुरस्रार गारें आज भी देखने वालों को अपने शहर में जकड़े रखती हैं। शाह अल्लाह गांव के मकामी लोग कहते हैं कि बुद्धा की ये गारें सैकड़ों साल पुरानी तहजीब की कहानी बताती हैं। रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। शहर इक्तदार में मारगला पहाड़ियों के सिलसिले में वाक़िया गारें जहां पुरस्रार भी हैं, वहीं सयाहों के लिए तफरीह गाह भी हैं। ये कदीम गारें 650 साल पुराने गांव शाह अल्लाह में वाक़या है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि बुद्धा की ये गारें सैकड़ों साल पुरानी तहजीब की कहानी बताती हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगनदास। जापान और बरतानिया के स्कूल ये आते हैं पहले, उन्होंने इस जगह जब देखा बुद्धा की तस्वीर मैंने उनको दिखाई, सैकड़ों साल पुरानी ये गारें सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका समेत कई अदवार की गवाह हैं। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख और मुसलमान हर दौर में इन गारों की अपनी मजहबी हैसियत रही है। अहले इलाका का कहना है कि कब्जा माफिया की वजह से ये गारें तबाहाली का शिकार हो रही हैं। हमें बेशक कुछ भी ना दें, अगर कुछ देना चाहते हैं दें, बेशक ना दें, हम इसको बनाएंगे, लेकिन ये सरकारी अदारे ना हमें कुछ करने दे रहे हैं, ना आप खुद कुछ कर रहे हैं। बरगद के ऊंचे और कदीम दरख्तों की जड़ें इन पुरस्रार गारों को ढांपे रखती हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और इंतजामिया इन गारों की बहाली के लिए इक़दामात उठाएं। 2500 साल से भी कदीमी ये गारें मुख्तलिफ फितरी तहजीबों और मज़ाहिब का पता देती हैं। आज इन गारों को महफूज बनाने की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है, ताकि सयाह आएं और इस कदीमी विरसे में तारीख के दिलचस्प अब्वाब का मुतालिया करें। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, शाह अल्लाह, इस्लामाबाद। हीरे चाहिए तो जनूबी अफ्रीका चलो। हज़ारों अफराद हीरों की तलाश में सूबा क्वाज़ुलु-नाटाल के छोटे से गांव में पहुंच गए। 1905 में इस इलाके से दुनिया का सबसे बड़ा खुरदरा क्वालिटी का क्लेनिन हीरा मिला था। हीरे की कहानी का आगाज सूबा क्वाज़ुलु-नाटाल में एक चरवाहे की बात से हुआ, जिसने दावा किया कि उसे गांव से एक पत्थर मिला जो हीरा लगता है। बस फिर क्या था, चरवाहे की बात पर सोशल मीडिया पर भीड़ चाल चल निकली। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के कस्बों और देहात से हजारों मर्दो खवातीन कदालें, कुल्हाड़ियाँ और बेलचे लेकर खजाने की तलाश में उस गाँव पहुँच गए। ये हलचल ऐसे ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 1905 में इसी गाँव से दुनिया का सबसे बड़ा खुरदरा क्वालिटी का क्लेनिन हीरा मिला था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद पर इंतजामिया परेशान है। क्वाज़ुलु-नाटाल की हुकूमत उन्हें वापस जाने का कह रही है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। इंतजामिया को खदशा है कि सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो अफरा तफरी और भगदड़ मच सकती है। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।